Yes, sir, it is full screen. Good. So, whenever we talk about happiness, um, let me first say that there is a surfeit of knowledge regarding this subject everywhere. I mean, you look at your WhatsApp messages, you will get one happiness message every day at least from your groups somewhere, sometimes even more. You look at tea coasters, the tea coasters will have ideal happiness quotes and all, how to go for happiness. We have happiness coaches now who are helping people. Then you get a lot of quotations and you get a lot of posters. Some say seek happiness and some say don't seek happiness. And then there are at least a million books written on happiness. So obviously, with so much of good things going around, why are we still in search of happiness? Is it because we have not read all those books properly? Is it because we have not studied them thoroughly? Or is it because the information is plain, kind of uh, antithetical to each other? So you would be having a lot of speakers who would be coming and telling you they do this and don't do this and don't do this. But it is my experience, I have been to a lot of conferences, psychology conferences, spiritual conferences, that change is not easy. The change is not easy because you don't imbibe what you learn and you don't know how to imbibe what you learn. It is not your fault. It is the point is that you have to understand it. And that is what I call it today's topic is the neuropsychiatric basis of happiness and why we cannot achieve this happiness today because we don't understand the neuropsychiatry behind it. It will become clearer as we go along. Now, the brain or the mind is in conflict with its parts on many levels. तो एक ऐसा ब्रेन, एक ऐसा माइंड जहां की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, ए वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फाइटिंग द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, how can the brain or the mind function properly? Is it possible? No. So let us examine what is happening here. So this is the metaphor that we will go. And this metaphor was propagated more by Hyatt in 2006, where this is your whole mind. And there is a rider on an elephant. Rider is small, minuscule. It is the conscious verbal thinking brain, what we are using right now. Whereas the elephant is the automatic, emotional, visceral brain. And the path is the environment on which the elephant has to walk. Now, think about it. The elephant can go in any direction. The rider cannot force him to go in a particular direction. The rider can only tell him, hey, don't do this and don't do that. But the elephant is not supposed to follow it at all times. So that is the problem here. How does the rider direct the elephant towards the right direction and therefore towards happiness? William Shakespeare has said that there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. He's stressing on the fact that external circumstances are immaterial. What makes you happy, unhappy is your thinking. So one is our negativity bias. So our brain has been programmed, the elephant has been programmed to see all the bad things in life. I will tell you why a little bit later. So you see, there are so many good things happening to you, but the brain is just focusing on what is not going right. So Montaigne, John Montaigne, in earlier 20th century, was a philosopher, and to tell you about how you are just powerless. You may think that you have all the power in the world and willpower and all that. He tells that your penis will also let you down.
that when it is not supposed to be active, it becomes active, and you want it to be active, then it just doesn't respond. So what is happening here? So let us examine the various divisions of the mind. The first division is the mind versus the body. That means that there is just not one mind. There is one mind in the brain, there is one mind in the gut, and there is one mind in the heart, or you can say brains. So the gut brain is very important. You wouldn't believe it, but gut brain has got 100 million neurons, and it is independent of the head brain. This is very important because think about diseases like irritable bowel syndrome. I mean, the head brain can't do anything about it, and it is extremely difficult to treat. Think about some things like antidepressants, which you give for the head brain, but it just throws the gut brain out of helter-skelter. Ancient techniques have also done this, that they have focused on the three lower chakras, navel, sex, and anus, and have focused a lot on them because they also need to be right on functioning very well. The second division is, you all know this, left and right divisions. And where you know the right brain has got certain actions, the left brain has got certain actions, and sometimes they used to divide the brain by an old house. When you have an old house and you want to expand that old house, you do all kinds of stuff. You usually people expand it from the back side. तो बैक का जो पेशियो है उसको बड़ा कर देंगे, पीछे एक कमरा बना देंगे, ऊपर एक कमरा बना देंगे, इस तरह से बनाते हैं. The whole thing is maybe functional but looks pretty ugly, right? So that is what has been happening when the brain has been evolving over a period of centuries. So slowly and slowly the brain has been evolving, and the additions to the brain have been on the front. So the frontal cortex has got bigger and bigger as man has evolved. So this is the third division. The third division is that there is an old brain and there is a new brain. So the old brain starts off with thalamus. Thalamus is the part which receives all the input from the external environment, and then it distributes that input. Then there is amygdala, which has all the emotional memories of the past. Then hippocampus, and then the newer this thing is the orbitofrontal cortex, which is the seat of emotion. The seat of emotion is important because it leads to proper functioning. It leads to humanity. If you were to destroy that part, the person will be thinking properly, absolutely fine, but it will be of no use to society. The fourth division is the type of processes that happen inside our body. One is controlled processes versus automatic processes. Suppose you have to catch a flight to Mumbai. So you sit down, you know the time of the flight, you calculate how much time it will take in traffic to reach the airport, and then some more time in security, and so on and so forth, and you work out the logistics. Once the logistics is done, everything, you set out for the drive to the airport. From then on, there is no controlled thinking. Everything is automatic. You go there, you're thinking about something else. You are going to check in, you're thinking about something else. Then you go into security, you're thinking about something else. Everything takes over automatically from that. So the point is that controlled thinking is limited. Controlled thinking is only one thing at a time, but automatic thinking is amazingly fast and it can run in parallel. Controlled processing also requires language. Now, language has been a relatively new development in human evolution. It's almost like last 3% of the evolution language came into. Therefore, the rider has only language to understand what it has to do. And therefore, rider is now reduced to just an interpreter bundle. कि ये एलिफेंट क्या कर रहा है उसको एक्सप्लेन करना है. करना सब एलिफेंट को ही है, बस राइडर को अपना लैंग्वेज को यूज करके
ये सब प्रोसेसेस को करके ये बताना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। फिर वो डिसाइड जरूर करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, बट देन दैट इज इट. So these are the two kinds of, you can go through this thing again, but the main thing is that automatic processes involve still a very large part of the brain, all the red part of the brain. You must have heard about marshmallow test. I think no psychology student would have not heard about marshmallow test. For those non-psychology persons attending, I can tell you about this test where they put marshmallows in front of children, and they told them that the teacher told them that I'm going away, don't eat that marshmallow, and if you don't eat that marshmallow, when I come back 15 minutes later, I will give you 2. And they did this test on a large number of students. And then they divided those. Some students right away ate the marshmallow, some students held back and they didn't take the marshmallow. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इन स्टूडेंट्स को फॉलो किया गया from 1970 to 1985. So it was found that delayed gratification was able to resist temptation. जिन लोगों ने रेसिस्ट किया था मार्शमैलो खाना, देखा गया कि वो जब टीनेजर्स बने तो भी टेम्पटेशन रेसिस्ट करी, उन्होंने स्मोकिंग शुरू नहीं करी, उन्हें गंदी आदतें नहीं हुई, दे कुड फोकस ऑन स्टडीज एंड टू कंट्रोल देमसेल्फ इन एडवर्स सिचुएशंस. तो कैसे किया उन्होंने? तो मार्शमैलो से भी उन्होंने बचा और बाकी टेम्पटेशन से भी बचे. तो क्या किया उन्होंने कि दे लुक्ड अवे एंड दे थॉट अबाउट बेटर थिंग्स. लाइक अ स्किल्ड एलिफेंट राइडर वो होता है, क्योंकि एलिफेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है, इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना, पर उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है और बड़ा सा पुचकार के लेके जाता है, चल इधर चल इधर चल इधर चल. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्शमैलो टेस्ट. यदि हम आपसे कहें कि डोंट थिंक अबाउट अ रेड एलिफेंट और अ पिंक एलिफेंट, सो after 15 minutes, I think 100% of you will fail. It's not your fault. Why? So, because your automatic processes are kicked in and they are continuously checking, am I not thinking about a pink elephant? This monitoring of the thought process introduces that exact thought into your consciousness. So, controlled processing fails and automatic just runs unopposed. Therefore, it is proven that an attempt to remove an unwanted thought will guarantee that it will be there. Don't even try. My philosophy is to think up a new philosophy whenever I need one. तो ये इंटरेस्टिंग है. कई बार मॉरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स के बीच में, स्पाउसेस के बीच में, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है. जब पूछते क्यों, तो फिर वो कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं, इस वजह से. नाउ द पॉइंट इज दैट इन दीज आर्ग्यूमेंट्स feelings come first and then reasons are inserted later to throw at each other. So that is what happens कि हमारी सिचुएशन हमने पहले से तय कर रखी है. हमारे एलिफेंट को मालूम है कि हमें किधर जाना है, उसके एलिफेंट को मालूम है कि उसको कहाँ जाना है. वो तो हो गया झगड़ा. अब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि क्यों जाना है, तो राइडर जो रहता है वो राइडर एक आर्ग्यूमेंट को वो करता है, जनरेट करता है और देता है सामने वाले को, इसलिए जाना है इसलिए जाना है. और थर्ड पर्सन अगर कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये आर्ग्यूमेंट्स बेसलेस हैं. सपोज करो कि आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे और आपने कंप्लीटली मेटिकुलसली रिफ्यूट कर दिया सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को, प्रूव कर दिया कि तुम गलत हो. डज द अदर पर्सन एवर एग्री कंप्लीटली? ऐसा नहीं है, कभी एग्री नहीं करता वो, because the argument was just an afterthought after the judgment was made. It is the elephant who decides what is good, bad or ugly. Rider's job is to create arguments to give to others. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो थिंकिंग माइंड है उसी के बारे में हमें मालूम है, हमें एलिफेंट के बारे में तो मालूम ही नहीं है. तो हमको लगता है कि हमारे सारे, अचानक से हम घबरा जाते हैं कि हमारे अर्जेस, विशेस, टेम्पटेशंस कहाँ से आ गए, क्यों आए मेरे दिमाग में. तो
This is like that guy who's looking for his wallet right under the light, where he has lost his wallet somewhere near the door in the dark. क्योंकि उसको उतना ही मालूम है, लाइट ही मालूम है, डार्कनेस में तो कुछ दिखता ही नहीं है. So the moment you see somebody or the moment you come to any situation, there is a lycometer. A lycometer ये कहता है कि I like this, I don't like this, I love it, I hate it. वो राइट अवे डिसाइड कर लेता है. इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग जाती नहीं है. तो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी बायस. कई बार नेगेटिविटी बायस इतना ज़्यादा होता है कि कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग आपके साथ हो जाए, चीज़ें हो जाए, पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. पर जैसे ही नेगेटिव के प्रति गए तो हम बोलते हैं इट इज ट्रू, आई एम ए फेलियर. So why does this negativity bias occur? In the ancient times, man को survival important होता था. So man had to survive from all the predators that can attack him. So it was on high alert for any kind of danger. कुछ भी डेंजर होगा तो फ्लाइट और फाइट होना ही है. अब सोचो कि ये हमारे पूरे इवोल्यूशन में 95% टाइम तक हुआ है. तो आपको क्या लगता है हम 5% टाइम में चेंज कर लेंगे अपने आप को? नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसीलिए नेगेटिविटी बायस ये कहता है, हमारा अंदर कहता है कि बैड इज स्ट्रॉन्गर देन गुड. मतलब हमारा जो बैड रिएक्शन होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा. गुड रिएक्शन तो ठीक है. आपने भी देखा होगा कि फैमिलीज में जहाँ थोड़े से झगड़े होते हैं, झगड़े हायर वॉल्यूम पे होते हैं, और जो नॉर्मल बातें होती है, जो प्यार की बातें होती है, वो चलते फिरते होती है. Responses to unpleasantness and threats are faster, stronger than responses to opportunities and pleasures. In marriage, it has been proven, all this is proven by studies, that it takes 5 good interactions to make up the damage done by just one critical act. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमको करनी है ताकि हमें अपने अंदर में चेंज लाना है. और जब हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर नेगेटिव बायस है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ बायस है, देन वी विल स्टार्ट टू चेंज. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि वी आर नॉट सो सेंसिबल ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्थ एज ऑफ द लीस्ट सिकनेस. आप हेल्दी रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. आपका थोड़ा सा सिर दुखा तो आप परेशान हो जाते हो. सो वी हैव इनसाइड अस ऑपोजिंग फोर्सेस एट वर्क. सो देयर इज अ बैलेंस पॉइंट, एंड द बैलेंस पॉइंट इज लाइक पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का बैलेंस होता है. लाइकोमीटर से रिफ्लेक्स होता है कि हमारा बैलेंस कहाँ है, पॉजिटिविटी की तरफ है कि नेगेटिविटी की तरफ है. तो फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसने एक लड़की को देखा किसी पार्टी में या गेट टुगेदर में, उसको लगा यार ये अच्छी लड़की दिख रही है, मेरे को इससे जाके बात करनी चाहिए. तो ही स्टार्ट्स टू अप्रोच दैट गर्ल. बट जैसे ही उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एक अचानक फियर उठता है और वो फ्रीज हो जाता है और वो छोड़ के आ जाता है, बात ही नहीं करता है. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो उसका एलिफेंट था, जो उसका जो प्रिमिटिव ब्रेन था, उसने बताया डेंजर डेंजर डेंजर, वो ऐसा कह देगी, ये ऐसा कह देगी, ये ऐसा कह देगी, जो भी है. तो वो इस डायग्राम में दिखता है कि आप देखेंगे कि जो थैलेमस है, जो कि येलो कलर का है, तो ये थैलेमस में इम्पल्स आया. उसने लड़की को देखा अपनी आँख से, और जैसे ही उसने देखा तो उसके कॉर्टेक्स में गया सिग्नल. कॉर्टेक्स ने डिसाइड किया कि इस लड़की से बात करनी चाहिए. बट वो बात करके वापस जब तक सिग्नल आता है, तब तक तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का, बहुत ही टाइट कनेक्शन है थैलेमस का विद द हिपोकैम्पस एंड द अमिगडाला. तो अमिगडाला में ऑल द नेगेटिव मेमोरीज आर स्टोर्ड. कि रिजेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा. तो बिफोर दिस होल थिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स कैन कम बैक, अमिगडाला ने अपना स्टैंप लगा दी, कोई झंझट नहीं, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं. तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते. मान लीजिए कि आपके पीछे से किसी ने अचानक जोर से बोल दिया, तो आपको नहीं मालूम था पीछे कोई है, तो आप स्टार्टल हो जाते हो, तो आपका हार्ट रेट शूट अप हो जाता है. बट उसके बाद आपका कॉर्टेक्स करता है, अरे ये तो मेरे डैड है, ये तो मेरी मम्मी है, ये तो मेरा भाई था, किसी ने अचानक आके बोल दिया. तो जो हमारे ब्रेन में एक रेड अलर्ट सिस्टम है, वो इतना पावरफुल है कि वो सबसे पहले हमारे रेस्पॉन्सेस को कवर करता है. Unfortunately, the brain has no green alert system. अब सवाल ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं.
optimist, pessimist. I'm not using that term very broadly. So Hamlet was a born pessimist. ट्विन स्टडीज ने, अगर आप लोग रिसर्च करोगे तो देखोगे कि जो ट्विन्स की स्टडीज हुई है, आइडेंटिकल ट्विन्स की स्टडीज हुई हैं, उसमें देखा गया है कि द लास्ट डील ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर जीन्स. अगर आपके जीन्स में हैप्पीनेस के जीन्स हैं तो वो जाएंगे और नहीं. कैसे पता चलता है? ये देखा गया है कि अगर आप उनका ब्रेन मैप करो तो द ब्रेन वेव्स कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द फोरहेड दे मेक यू मोर हैप्पी एंड लेस एंग्शियस देन द राइट साइड. अगर लेफ्ट से वो आ रहे हैं तो आपको हैप्पी रखेंगे और राइट से आ रहे हैं तो तकलीफ में जाएंगे. राइट से यदि आ रहे हैं और वो बच्चा है तो उसको चलने में डर लगेगा. वो टीनेजर जब बन जाएगा तो शाई और इंट्रोवर्टेड होगा, और जब एडल्ट होगा तो उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी. तो ये सिर्फ एक लॉटरी है, ये हमारे हाथ में नहीं है. ये हमें क्या मिला है ये देखना है. तो चलो हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं. इंडिविजुअली आप लोग टेस्ट कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो, आपकी लॉटरी में कहाँ क्या मिला है. तो देयर इज अ स्मॉल टेस्ट. So the first set is, these are a set of statements. See whether you agree with any of these statements. I am always willing to try something new if I think it will be fun. If I see a chance to get something I want, I move immediately. सोचता नहीं मैं. When good things happen to me, I move strongly. I often act on the spur of the moment. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अप्रोच ओरिएंटेड होते हैं. They approach life with a positive intent. और जो सेट बी है वो क्या करते हैं? They worry about making mistakes. Criticism is very hurting for them. उनको criticism पागल कर देता है. They feel worried that I have done poorly at something and I have many fears compared to my friends. ऐसे लोग withdrawal oriented होते हैं, जिनका कि राइट साइड ऑफ द फोरहेड से सिग्नल आ रहे हैं. जो पहले वाले थे इनमें लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से सिग्नल आ रहा है. ये आपकी जीन्स से डिसाइड हो गया है. तो सवाल ये है कि वॉट एवर इज योर स्टेट, आर यू डेस्टिन्ड टू बी ऑन द वे यू आर? जो आपके साथ हुआ, जो आपको मिला, जो जीन्स मिली, सेट ए वाली कि सेट बी वाली, क्या हम वैसे ही रहेंगे? ऐसा नहीं है. देयर आर एटलीस्ट 3 ways टू चेंज. उसके बारे में बात करते हैं. यदि हम कहें कि आपको एक हम ऐसी दवा खिलाएंगे जो आपको एक बार लेनी है दवा दिन में, और उससे आपकी एंग्जाइटी कम होती है, कंटेंटमेंट बढ़ता है. उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, एम्पैथी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ती है, मेमोरी इंप्रूव होती है. और सबसे मज़ेदार बात है कि नेचुरल है और फ्री दवा है. तो क्या आप लोग लेना चाहोगे? वेरी सिंपल. इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना? तो क्या है ये चीज़? ये है मेडिटेशन. नाउ मेडिटेशन कॉजेज ऑल दिस बेनिफिट्स. एंड मेडिटेशन के साथ देखा गया है नॉर्मली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग. जिसने कभी मेडिटेट नहीं किया है उसको मुश्किल जाती है. मुझे भी बहुत मुश्किल गई थी. इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, इमीडिएट नहीं मिलते हैं. तो वो जो राइडर ऑफ द एलिफेंट है, जो एलिफेंट को चला रहा है, वो उसको टीच करता है कि ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस. ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. पेशेंस रखना. गोल ये है कि हमें अपनी ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, और जैसे ही हमारी ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस चेंज होगी तो वो एलिफेंट टेम हो जाएगा. कैसे पता चलेगा कि एलिफेंट टेम हो गया है? तो प्रूफ ऑफ टेमिंग ये रहेगा कि दिस ब्रेकिंग फ्री ऑफ अटैचमेंट्स. तो जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, आई कैन जस्ट रिकमेंड दिस 6 phase मेडिटेशन विद विशेन लखियानी, फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब. 15 मिनट का है. इससे स्टार्ट करेंगे, इजीएस्ट है और काफ़ी इफेक्टिव है. फिर ये जब आप मास्टर कर लें, यू कैन गो टू हायर थिंग्स लेटर ऑन. तो कौन कौन से अटैचमेंट्स हैं जिससे कि ब्रेक फ्री करना है? तो इट्स पॉसिबल दैट यू मे बी अटैच टू बीइंग रेस्पेक्टेड. आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, आई एम श्योर आप लोग ऐसे प्रोफेसर्स को जानते होंगे जिनको कि थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट हुआ तो वो बहुत ज़्यादा आंख बबूला हो जाते हैं. तो दोज प्रोफेसर्स आर अटैच टू बीइंग रेस्पेक्टेड. यू माइट बी अटैच टू मनी. मेरा थोड़ा भी लॉस हो गया तो मुझे लगेगा अरे यार ये क्या है,
तो बहुत बुरा लगता है। तो जितने भी अटैचमेंट्स हैं, इनको बुद्धा ने कहा है कि अटैच आर लाइक रिग्ड रूले व्हील्स। रूले व्हील आपको मालूम है, गेम ऑफ फॉर्चून घुमाते हैं, और जहाँ पे भी रुकता है वो आपका रिजल्ट होता है। मुझे याद है कि इंदौर में एक फर्नीचर शोरूम ने सेल लगाई थी, और एक रूले व्हील ऐसे वाला लगाया था कि आप सामान खरीदो और घुमाओ, उससे आपका डिस्काउंट निकलेगा। और वो डिस्काउंट रहते थे 5, 10, 15, 20, ऐसे 50, 80% तक उसमें डिस्काउंट लिखा रहता था। मैंने आज तक किसी का भी 80% डिस्काउंट निकलते हुए नहीं देखा गया। सबको 5 से 20% का ही डिस्काउंट निकलता था। क्यों? क्योंकि वो रूले व्हील रिग्ड था, और रिग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें हम जाएंगे नहीं, बट मैग्नेट्स लगा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। एनीवे, सो ये रिग्ड रूलर व्हील है जिसमें कि आपकी हार निश्चित है। अटैचमेंट उस तरह की रिग्ड रूलर व्हील्स होते हैं। द मोर यू प्ले, द मोर यू लूज। ओनली वे टू विन is step away from the table. Not reacting to the ups and downs of life, meditation is one of the way to do that. तो पहला हमने कहा कि जो 3 तरीके हैं उसमें था मेडिटेशन। सेकंड तरीका है कॉग्निटिव थेरेपी। Meditation has generally been Eastern approach and cognitive therapy is a Western approach. Western approach ये कहती है कि आपके पास एक टूल बॉक्स है और उसको निकाल के जो भी चीज ब्रोकन है उसको फिक्स करो। So I think this was originated by David Burns, but it was modernized in 1960s by Aaron Beck. And this is one of the most effective therapies of depression and anxiety. You catch your thoughts, name distortion, find alternative and accurate ways of thinking. Thus, you are breaking the old feedback loops. और तो ये सेकेंड है। और तीसरा तरीका है ड्रग्स, एंटीडिप्रेसेंट्स। They work, they work, definitely they work. I have seen people change from pessimist to optimist after taking antidepressants. So yeah, but they work only till they take them, but they have side effects. They cause loss of memory and GI side effects like constipation, diarrhea is a few of these. Now, happiness based on achievements is fleeting. Suppose करो कि आप अपने साइकोलॉजी डिग्री के लिए खूब जम के पढ़ाई कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, तो आप मेरिट लिस्ट में आ गए। जिस दिन रिजल्ट आता है और लिस्ट में देखते हो, आप ये नॉर्मली नहीं कहते हुर्रे फैंटास्टिक मजा आ गया। नो, यू डोंट डू दैट। नॉर्मली क्या रहता है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। चलो भाई, मैंने काम किया, उसका रिजल्ट आ गया, अच्छा अब क्या करें आगे। सो द प्लेजर और हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट इज देयरफॉर शॉर्ट लिव्ड। क्यों शॉर्ट लिव्ड है? वो इसलिए बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन प्रिंसिपल। I'll not go into details here in this because of lack of time, but adaptation principle is one thing you have to understand, because this will guide you towards what you want to do in life. All the brain and the mind adapt to situations very fast, and they want newer things, they want better things for them to be more, give them more pleasure. So progress principle बहुत important. प्रोग्रेस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब एलिफेंट जितने भी स्टेप राइट डायरेक्शन में लेता है उसको प्लेजर फील होता है। So this is a pre-goal attainment positive effect. The pleasurable feeling as you make progress towards your goal. एक लड़की हाइकिंग करने गई, 12 घंटे हाइक करी, और हाइक करके जब घर आई और उसने बैग उतार के रखा, उसके बाद तो वो नहीं कहती ना कि ये तो बड़ा अच्छा रहा। उसको फीलिंग अच्छे होने की तब आ रही थी जब वो हाइक कर रही थी। So she was having pleasure during the journey and not at the destination. This is the journey that counts. So things one are done, the joyous soul lies in the doing. That is William Shakespeare. इतने पहले उसको पता था। Now क्या होता है कि आपका इनहेरेंट सेट पॉइंट इज ऑलरेडी डिटरमिन्ड। आपका सेट पॉइंट है, वो लाइकोमीटर है, जो भी है, आपके जेनेटिकली वो डिटरमिन्ड है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे या फीलिंग ऑफ प्लेजर पे या फीलिंग ऑफ गुडविल गुडनेस पे आप रहोगे। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही पैसा कमा लो, चाहे कितनी डिग्रीज ले लो,
आप यू विल रिटर्न टू दैट हैप्पीनेस सेट पॉइंट. जब आपको डिग्री मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए जंप होता है एंड देन यू कम बैक, थोड़ी देर के लिए जंप होता है नहीं कम बैक. सो द पर्सन हु मेक्स 1 मिलियन से 2 मिलियन 10 मिलियन गोज अप एंड देन उसका हैप्पीनेस सेट पॉइंट वही रहता है. तो दिस इज द हेडोनिक ट्रेडमिल कि जब आप दौड़ते रहोगे लेकिन बेसिकली यू विल फील एज दो यू आर स्टेइंग द सेम. इसको बंद करो. दो तरह के लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ. दीपक नाम का बंदा है जो कि 35 ईयर्स है, सिंगल, गुड लुकिंग, एथलेटिक, earns 3 lakhs per month, lives in Pune in posh locality, highly intellectual and spends time reading, going to museums and so on. ये तो एक बंदा हुआ. दूसरा एक महिला है, इसका गीता नाम है. ये 65 साल की है, हैप्पीली मैरिड है, स्मॉल टाउन में रहती है मदुरई के पास, तमिलनाडु में. इसके और इसके हस्बैंड की कंबाइंड इनकम 22,000 रुपये. वो दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, प्लेन दिखती है, और स्पेंड्स मोस्ट फ्री टाइम रिलेटेड टू टेम्पल एक्टिविटीज इन द टेम्पल. उसको क्रॉनिक डिजीज है किडनी की और उसको डायलिसिस भी चल रही है. अब आप लोग सोच के ये बताओ कि इन दोनों में ज़्यादा हैप्पी कौन होगा? 15 सेकंड तक सोचो, फिर मैं जवाब देता हूँ. तो अगर आपको बेट करना हो, अगर आपको शर्त लगानी हो, तो शर्त ये लगाओ कि गीता इज मोर हैप्पियर देन दीपक. क्यों? सबसे पहली बात, शी हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड डिपेंडेबल मैरिज. अ गुड मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हैप्पीनेस. नंबर ऑफ स्टडीज हैज डन. क्यों? इसलिए क्योंकि डिपेंडेबल कंपेनियनशिप, जहाँ कि आपको मालूम है कि ये बंदा मेरे साथ है और ये बंदा मेरी हर बात में मेरे को सपोर्ट करेगा और मेरे को लीड करेगा, या हम लोग शेयर कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नेवर अडेप्ट टू इट. इनको अडेप्टेशन होता ही नहीं. इट इज इनफैक्ट गिविंग यू पॉजिटिव फीडबैक एवरी सिंगल टाइम. दूसरा, उसके सोशल कनेक्शन थ्रू द टेम्पल कम्युनिटी है. दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. शी इज कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल इन दिस सोसाइटी विच मेक्स अ नाइस कम्युनिटी. दीपक के पास ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस हैं, लाइक पावर, स्टेटस, फ्रीडम, हेल्थ, बेटर क्लाइमेट. हाँ, तो वो सब चीजें हैं, लेकिन ये सारे के सारे आर सब्जेक्ट टू अडेप्टेशन. ये समझना बहुत जरूरी है. न्यूमरस स्टडीज हैव टोल्ड अस white Americans are not more happier than black Americans. Men are not more happier than women. Even though men are powerful, men are doing better than women mostly. There is no difference between elderly and young, at least till the age of 65. Pleasant climate versus hot climate, happiness level में कोई फर्क नहीं है. Attractive versus non-attractive, कोई फर्क नहीं. तो फाइनली अपन अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. जो नॉलेज हमने गेन किया कि इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें. तो ये एक हैप्पीनेस फॉर्मूला है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू S प्लस C प्लस V. S क्या है? आपका सेट पॉइंट जो आपको जेनेटिकली मिला है. C क्या है? C है एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे कि जैसे अपन ने दीपक और गीता की बात करी. V है वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, न्यू स्किल्स, गोइंग फॉर ए वेकेशन, तो ये सारी चीजें. तो द एक्सटर्नल कंडीशंस, अब इसमें S तो आप चेंज नहीं कर सकते. अब क्या C को चेंज कर सकते हो? कर सकते हो. अब C में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके जस्ट एक ब्रीफली मेंशन करूंगा. वन इज नॉइज, कि अगर कोई व्यक्ति का घर ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ ट्रैफिक का बहुत ज्यादा नॉइज है, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल के पास ही रहता है कि बार बार गाड़ियां चालू होती है, बंद होती है, हॉर्न बजते हैं, और ऐसा नॉइज विच इज repetitive but irregular, this has known to cause cognitive impairment. So he should seriously consider changing his place of living. दूसरा है कम्यूटिंग. यदि हम बहुत लंबा कम्यूट करते हैं, जो कि पुणे बॉम्बे में देखा गया है, तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं.
So it is always good to have a short commute, and therefore even though you may have to live in a small house. तीसरा है lack of control. कंट्रोल अगर हमारे हाथ में है तो हमें अच्छा लगता है, एंड दैट कैन बी चेंज. तो एक स्टडी हुई थी, पेशेंट्स को वार्ड में मूवी दिखाने लगे और प्लांट्स रखने लगे किसी किसी दिन में. तो 2 वार्ड में उन्होंने स्टडी करी, और एक वार्ड में उन्होंने पेशेंट्स को अलाउ किया कि आप डिसाइड करो कि कौन से दिन आप मूवी देखोगे, कौन से दिन आपके यहाँ प्लांट्स आके रखेंगे, और दूसरे में डिसाइड नहीं करने दिया, फिक्स कर दिया. तो ये देखा गया कि जिसमें उनको कंट्रोल दे दिया गया, the patients recovered much faster, almost 45% faster. Then shame related to body parts. जैसे किसी को लग रहा है कि बहुत दुबला है, किसी को लग रहा है बहुत मोटा है, किसी को लग रहा है कि उसके ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं या छोटे हैं, whatever it is related to body parts which can be fixed, so that you can do something about it. And finally, more important is relationships. यदि आपका हॉस्टल में रहते हो, फ्लैट शेयर कर रहे हो, और आपका रूममेट बहुत अनोइंग है, या आपका जो स्पाउस है वो बहुत टॉक्सिक है, इट रिड्यूसेस हैप्पीनेस. आप कभी भी इससे अडेप्ट नहीं हो पाओगे, और इट विल कंटिन्यू डैमेज यू एवरी डे. तो डू समथिंग अबाउट इट. तो वॉलंटरी एक्टिविटीज, आप अपन ने सी की बात करी या वी की बात करेंगे. वॉलंटरी एक्टिविटीज में हम क्या करना चाहेंगे. तो या फिर किसी ने किताब नहीं पढ़ी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर पढ़े लिविंग एट द पीक ऑफ योर एबिलिटीज, फ्लो बाय मिहाली Csikszentmihalyi. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एंड दिस बुक डिस्क्राइब्स अबाउट द स्टेट ऑफ फ्लो. और मेरी रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजी में किसी ने अगर इस पर पीएचडी नहीं करी है तो जरूर करना चाहिए. दिस इज एन अमेजिंग इवॉल्विंग फैसेट ऑफ साइकोलॉजी. फ्लो क्या होता है? जब आप कंप्लीटली डूब जाते हो किसी काम में और आपको टाइम का पता नहीं चलता, और चाहे कोई भी काम हो, स्टडीज हो, प्ले हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, तो दैट इज द स्टेट ऑफ फ्लो. तो because you know that pleasure from food, sex and massage is temporary, the most valuable state is that of flow. फ्लो के लिए 3 prerequisites हैं हमारे पास. क्या क्या होना चाहिए? पहला है कि एक ऐसा चैलेंज होना चाहिए जो आपके अटेंशन को ग्रैब करे. यार ये काम करना है, ये करेंगे तो बहुत मजा आएगा. Then secondly, you should have some skills to meet the challenge. I mean, you can't say कि मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है कल और आपने कभी कुछ किया ही नहीं. तो you should have some skills to meet the challenge. And there should be immediate positive feedback. जो पेंटिंग बना रहा है उसने जैसी उसकी पेंटिंग की बैकग्राउंड बनाई, पॉजिटिव फीडबैक, अरे यार क्या बढ़िया, मजा आ गया. तो पॉजिटिव फीडबैक कंटिन्यूअसली चलना चाहिए. एलिफेंट को इमीडिएट पॉजिटिव फीडबैक चाहिए. So during this whole process of flow, during this whole process of that work you are doing, you should have flash after flash of positive experience. And here, the elephant and rider are in perfect harmony. Martin Seligman ने कहा है कि he has taken a lot of views on pleasure versus gratification. Overdose of pleasure will deaden the effect. You know it. कि किसी ने अल्कोहल लेना शुरू किया, उसको जो किक मिलता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है. इफ ऑल प्लेजर शुड बी सेवर्ड एंड वेरीड. अगर आपको फिर भी प्लेजर लेना, प्लेजर से मना नहीं कर रहे हैं, मान लो आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो आप उसको धीरे से खाएं और वेरीड करें. एक दिन एक आइसक्रीम खाएं, दूसरे दिन दूसरा खाएं, तीसरे दिन तीसरा खाएं, और बहुत धीरे धीरे खाएं. उससे क्या होगा कि वो उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्गर लास्टिंग होगा. Gratification, on the other hand, are longer lasting. They involve learning, improving and acquiring better skills. तो ये तो आज की डिस्कशन रही, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आज हमने बात करी है. दिस इज नॉट द होल एंड सोल ऑफ इट. जो मेरे को और टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें, वो है वर्च्यूज एंड देयर इंपॉर्टेंस, जो है बिलीफ इन ए हायर पावर और डिविनिटी, वॉट एवर यू नो. रिलेशनशिप में जाके डीपली ज़्यादा समझना पड़ेगा, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप्स के कि किस तरह से दे सपोर्ट यू और नॉट. देन गोइंग टुवर्ड्स कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यू आर एलिवेटिंग योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस continuously and going towards the highest level of consciousness, which is cosmic consciousness, where the division between you and the universe goes on melting.
ये सब चीज़ें पे अपने को जाना पड़ेगा. एंड देन लविंग व्हाट यू डू, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो मेरा ये कहना है कि हैप्पीनेस का कुंजी सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी में नहीं है और सिर्फ ईस्टर्न साइकोलॉजी में नहीं है. दोनों को अगर मिला लें, बुद्धा की टीचिंग को भी ले लें और आरन बेक की टीचिंग को भी ले लें, तो फिर आपके पास एक बहुत पोटेंट यूजफुल टूल्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इसको जा सकते हो. तो वी आर नाउ, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खुद एक सीरीज ऑफ जूम मीटिंग्स हम चालू करेंगे ऑन हैप्पीनेस. जिनको भी ज्वाइन करने की इच्छा है, ये मेरे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर से, प्रेफरेबली ईमेल करें, इजी टू कॉपी एंड पेस्ट. And I think we should start this in next 15 days. And I think between 4 and 5 meetings, we should cover all those topics and reach to some conclusions. Thank you very much for a patient hearing. और अगर questions are mostly welcome, कोई problem ही नहीं है, बताइए. Wow, sir. Thank you so much. I must say that I was so deeply engrossed in the session that I didn't want to stop learning from you. As you mentioned, flow, I could actually experience that state right now. Talking about the session, sir, I would say that such a complex concept of neuropsychiatry of happiness, you break down it to such a simple examples of day-to-day routine, talking about how WhatsApp messages are there, but we don't pay attention to it. Then talking about how our pitch of appreciating something or complaining something changes. All these simple examples gave such insight to us. Also, the metaphor of searching the wallet, the boy's metaphor of searching the wallet, and the elephant metaphor helped us to understand it so much more better. So I would say that the criterias of happiness that you mentioned with the example of Geeta and Deepak were so clear to, break down the standards that we have set for happiness already. So today the society has a different set of standard for happiness, but then the example of Deepak and Geeta showed what actual happiness is about. So thank you so much, sir. Not for one single moment we felt that you just recovered from a surgery, which clearly shows your dedication for the subject and for the profession, sir. These words coming from an experienced and well-informed person like you added so much to our understanding of happiness. Thank you once again, sir. I would just ask the participants if there are any questions, and we have some time, we have the bandwidth to take these questions on happiness. Yes, everybody is invited to join. Absolutely no charge, and we just hope that you will be in a much better control of your life and take you to the right direction. So now I can see a question, Anuradha Avasthi, when everyone's happiness has a different